field. Rotating magnetic field कब produce होता है? So this is our basic definition that you should know. So whenever a time displaced current flows through a space displaced winding, rotating magnetic field is produced. So this is a basic definition. Basic definition is a basic requirement for the rotating magnetic field to be produced. Okay, and okay, so we have seen two-pole structure, four-pole structure, and we have also seen the direction of rotation of rotating magnetic field. आपका जो direction of rotation होता है किस पे depend करता है? That totally depends upon the current and the conductor through which it is flowing. Okay, and we have seen how to reverse the direction of this rotating magnetic field. So what is the answer? The answer is written over here. The answer is to change the direction of RMF, simply change the phase sequence. अगर simply आप phase sequence को आप change कर दोगे, that's it. That will change the direction of rotation. Now the question is, why do we need to change this direction of rotating magnetic field? Yes, it has got some indirect effect on the direction of rotation of your rotor. कि आपका rotor किस direction में rotate करेगा, that is been decided by the rotating magnetic field. I'm talking about an induction motor here. I'm talking about the induction motor because this is one of the methods to change the direction of rotation of a induction motor. अगर induction motor का जो rotor, if it is rotating clockwise, if I want it to rotate in anti-clockwise, what is that I have to do is I need to change the phase sequence. So that is what it is. Okay. So phase sequence change करने का मतलब क्या है यहाँ पे? For suppose if you have conductors windings 1, 2 and 3, तीन windings हैं यहाँ पे हमारे पास. Initially previously हमने क्या दिया था? 1 was given to the phase A and B, 2 was given to the phase B and C was 3 was given to phase C. Phase sequence change करने का मतलब 1 will remain as it is. यहाँ पे जो है we are going to interchange. When we interchange, so what happens? The rotating magnetic field will be in opposite direction. Okay, so that is the point we have seen, and this is the basic expression that we should know, that the speed of rotation of rotating magnetic field is equivalent to 120 F by V, which is called as the synchronous speed. Okay, so what is this? What is this 120 F by P? This 120 F by P is nothing but the speed at which the rotating magnetic field will be rotating. So we had two configurations. One is a two-pole configuration था हमारे पास और एक four-pole था. For two-pole, this was the speed, that is 60 F, and for four-pole, it was 60 F by 2. Okay, so we needed a generalized expression for P poles. If I have P number of poles, what would be the generalized expression? The generalized expression will be equivalent to 120 F by P. So simply substitute P is equal to 2, you will get this expression. P is equal to 4, you will get this expression. So this is a generalized expression. This is what you need to remember. That is nothing but Ns is equivalent to 120 F by P is the speed at which the rotating magnetic field will be rotating in the free space. Okay, fine. Okay, so we have, I told you that there are two types of machines what we are going to study in this course, that is induction machine, also called as asynchronous. Why it is called as asynchronous machine? It is called as asynchronous machine because the rotor will never ever rotate at synchronous speed. आपका जो rotor होता है, this will never ever rotate at synchronous speed. That is nothing but the speed of your rotating magnetic field. इस speed पे कभी भी ये rotate नहीं करेगा. Either it will be less than synchronous speed or it will be greater than synchronous speed, depending upon whether it is motor or generator. But कभी भी ये synchronous speed पे rotate नहीं करेगा. So that is the reason it is also given the name as asynchronous machine. Synchronous machine, here it will be always rotating at the synchronous speed, that is equal to the speed of the rotating magnetic field. Okay, so this is what you need to remember. Yes, during disturbance there is a slight deviation from this speed, but again at the steady state it will come back to its original speed, that is ns. So that is the reason it is called as the synchronous speed. And last line, this line I think एक section में discuss नहीं किया. So this is what you need to know. The resultant MMF will align in the direction in which the maximum current flows, phase axis in which the maximum current flows. इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये two pole structure है, right? So if I know that the current flowing in this 1 and 1 dash is maximum, 1 और 1 dash में current maximum है, तो मुझे पता है because of this current the MMF will be in this direction. मतलब FA, the MMF because of the currents flowing in this conductors 1 and 1 dash is nothing but FA जो इस direction में है. मतलब अगर इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है तो रिजल्टेंट भी किसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा. द रिजल्टेंट विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन. ओके, फॉर सपोज द करंट फ्लोइंग इन 2 and 2 dash is maximum, 2 and 2 dash is maximum, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट एमएमएफ विल बी इन द सेम डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में होगा. तो बस वही पॉइंट है. जैसे हमने 4
पोल में था, 4 पोल में सिर्फ हमने एक ही करंट कंसिडर किया था, वी डिडंट कंसिडर द रिमेनिंग 2 फेजेस करंट्स, बिकॉज हमने मान लिया कि ये मैक्सिमम है, तो इसकी वजह से जो पोल्स होंगे रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को ये? हेलो? Yes, sir. Okay, see, in case if you are not understanding, please do let me know, I'm telling you, because this is basics. अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सिंक्रोनस इंडक्शन चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। ठीक है, फाइन। सो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेटर पार्ट, कि स्टेटर पे हमने एमएमएफ ईएमएफ दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, राइट? सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस सी some generation action here, generation process. Okay, everyone might be familiar with this expression, EMF, rotational EMF. Sorry, one second. EMF induced in any conductor is equivalent to BLV sin theta, and need not consider sin theta. Simply ये expression तो सब लोग को पता होगा. Everyone might be familiar with this expression. You might have studied about this expression अच्छे से in your 11th 12th या फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इस एक्सप्रेशन के बारे में. Yes, E is equivalent to BLV. What is this? This is nothing but the induced EMF in a conductor. Yes? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is this B? B is nothing but the magnetic flux density of the magnetic field. Okay. And what is L? L is nothing but the length of the conductor. Length of the conductor. And what is V? V is nothing but the velocity of the conductor in meters per second. Yes? So you might be knowing this expression. Okay, fine. ठीक है. चलो. So please थोड़ा carefully यहाँ से थोड़ा सा focus करें. So this is a stator, एक cylindrical stator है हमारे पास, and what is that we have over here is we just have only 2 windings. This is the winding number 1, and दूसरा winding जो है that is displaced in space by 90 degrees. That is displaced in space by 90 degrees. For suppose if I name this winding as A, so this will be exactly opposite to this A dash. Or suppose if I name this as B, so यहाँ पे जो होगा this will be V dash. Clear? Fine. So what is that I have to do here is I need to, अभी तक हमने सिर्फ मोटरिंग एक्शन देखा था जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे थे, ठीक है? And now what is that I have is I have this a magnetic pole structure, and what is this pole structure, ये जनरेटर में कैसा होगा and all these things वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जनरली मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटर है जिसपे आपके पास 2 वाइंडिंग्स हैं, 2 वाइंडिंग्स इन द सेंस 4 कंडक्टर्स. हमें पता है कि सो यू माइट हैव सॉल्व्ड मेनी न्यूमेरिकल्स इन डीसी मशीन्स, राइट? तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स की जगह इनडायरेक्टली कैसे देते हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स दे देते हैं. सो व्हेनेवर आई से दैट इट इज 1 वाइंडिंग, एक वाइंडिंग का मतलब कितने कंडक्टर्स होते हैं? Whenever I say that I have 1 winding, so how many conductors I have in that 1 winding? Hello? 2. Hello? So 2. Yes. So this is 1 conductor and this is 1 conductor. एक winding में हमेशा आपके पास 2 conductors होते हैं. So this is 1 conductor and this is the second conductor. So this is what you should know. Okay. So this is a north pole and this is a south pole. So now what is happening is, as I told you that this is a generation process, so यहाँ पे I'll be giving a mechanical input to my rotor. So this is a stator and this is a rotor. I'll be giving some mechanical input to my rotor. So whenever I give a mechanical input to my rotor, so because of that mechanical input, it will start rotating. And what is the direction of rotation here? The direction of rotation is in the anti-clockwise direction. Okay, जरूरी नहीं कि आप anti-clockwise ही लेना है, यहाँ पे आप clockwise लेके आप चेक कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले. Is this clear? Hello? Yes, sir. Okay, so you have a stator on which you have 2 windings, 4 conductors, and you have a rotor kind of a structure जिसके ऊपर north and south poles induced हैं, जिसको हम rotate कर रहे हैं in anti-clockwise direction. So this is the model that you have in front of you. Now the question is, what about the direction of currents in यहाँ पे जो EMF induce होगा या तो currents flow करेंगे उनका direction क्या होगा?
A डैश में and B और B dash में. That is the question. What is the direction of EMF induced or else what is the direction of currents? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे डॉट होगा या क्रॉस होगा. Nothing but in this conductor A में will it be a dot or a cross? डॉट होगा या क्रॉस होगा इसके अंदर. Obviously अगर यहाँ पे डॉट होगा तो यहाँ पे क्रॉस होगा. तो उसी तरीके से व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, इज द क्वेश्चन Yes, क्लियर? sir. ओके फाइन. नाउ गो बताइए अभी आप. सो कैसे आप बताएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट्स? हाउ डू यू गेट दिस डायरेक्शन ऑफ करंट हियर? कैसे बताएंगे, बताइए एक बार मुझे. हाउ डू यू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Will it be a dot or a cross? This is something which is very basic that you might have studied in your DC machine. DC machine में आप लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है? That is what I'm asking. Nothing new I'm asking. So please try to recall कि किस basis पे हम यहाँ पे decide करेंगे is it a dot or a cross? Okay, fine. So Fleming's So, right hand rule. yes, very good. The answer is Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is the answer. And Fleming's right hand rule किसके लिए यूज किया जाता है? It is basically used for generator या मोटर के लिए यूज किया जाता है, बताइए. And left hand rule जो होता है, For motor left hand rule किसके लिए यूज किया जाता है? This is used for this is used for motor. Left hand rule is used for motoring action and right hand rule is used for generation action. So there should not be any confusion between this right hand rule and left hand rule. Okay, so अब मुझे बताइए, so using this right hand rule, just let me know the direction of currents in this conductors A and A dash. कैसे कैसे आप बताएंगे, बताइए एक बार मुझे. So there should not be any confusion. A inward. Sorry, A में A होगा, cross. A will be cross. A will be cross and A dash will be Dot. a dot. Obviously, if this is a cross, this has to be a dot, right? So this is the question. So एक student ने answer किया है कि sir this will be a cross and this will be a dot. Okay. So before that, just let me know what is that each and every finger specify here. So we know that in a right hand rule, so we will be pointing our three fingers in right hand in right angles to each other, right? First one will be your thumb. Thumb. सिर्फ आप right hand पे focus करेंगे आप thumb, and one is your one will be your forefinger. आपका जो forefinger होगा, okay? And last one is your middle finger. Okay, fine. तो मुझे बताइए ये तीनों फिंगर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं? So mutually perpendicular. Yes, yes. Sorry. So all of them are All three are mutually per- Yes, yes. It has to be mutually perpendicular. तीनों जो होंगे, if I look at my thumb will be perpendicular to my forefinger as well as my middle finger. तो इस डायरेक्शन में आपको आपके फिंगर्स को पॉइंट आउट करने हैं, आपका जो राइट हैंड के जो तीन फिंगर्स है. सो नाउ द क्वेश्चन इज ये थंब किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, फोर फिंगर एंड दिस मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है? दैट इज द क्वेश्चन. So thumb is the force, forefinger is the magnetic field, and the middle finger is the Oh. current. Okay, fine, very good. So this is nothing but the direction of motion or force. So what is this forefinger? Forefinger आपके हमेशा फील्ड को स्पेसिफाई करेगा, राइट? फील्ड को स्पेसिफाई करेगा. एंड व्हाट इज मिडिल फिंगर? दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. Yes? Is it so? Hello. Fine, ठीक है. और else यहाँ पे फोर्स की जगह हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं ऐसे, direction Motion. of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन. यस, फाइन. इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं और else I can write this as डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. अब मुझे बताइए अभी जो आंसर आपने किया है, क्या ये आंसर सबके लिए सेम है या तो फिर चेंज हो रहा है? इज इट क्रॉस एंड डॉट? You have the motion, you have this आपका यहाँ पे you can see the motion over here. फ्लक्स का डायरेक्शन आपको पता है, बस आपको एक निकालना है. दैट इज नथिंग बट two things are known. What is that? This is known and this is known. ठीक है. बस आपके दो फिंगर्स को, इन दोनों फिंगर्स को उस प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन करना है. एंड यू नीड टू लुक फॉर दिस current direction. Is it a cross or a dot? This is what I want you to check and just tell me, is it a cross or a dot? क्या सबका आंसर सेम है?
या इज देयर एनी कंफ्यूजन बाकी लोगों को इसमें? प्लीज एक बार बता दीजिए। डायरेक्शन। नहीं ठीक है, जिन लोगों ने आंसर बताया उनके लिए तो क्लियर है एटलीस्ट, या डायरेक्शन? Yes, sir. हेलो, ओके फाइन। सो यू आर फाइनल कि ये क्रॉस है और ये डॉट है। चलो, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, एंड जिनको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये डायरेक्शन कैसे होगा। सो लेट मी डू वन थिंग। सो आई थिंक पिक्चर ऑफ दिस, सो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया। वन सेकंड। वन सेकंड। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये मैं बोल रहा था कि this will give the direction of motion, this is nothing but the field, and this is giving the direction of current. So this is nothing but the right hand rule. तो इस तरीके से आपको अपने फिंगर्स को पॉइंट आउट करने हैं, and this is nothing but the right hand rule, right hand rule. ठीक है, इस तरीके से आपके फिंगर्स को पॉइंट आउट करना है, एंड आपको चेक करना है कि वहां पे जो है will it be a cross or dot, nothing but मुझे ये जो करंट का डायरेक्शन है, इस करंट का डायरेक्शन को मुझे चेक करना है, बिकॉज as this is a generator, two things should be there. क्या होना चाहिए? एक तो आपका फील्ड होगा, फील्ड विल बी देयर एग्जिस्टिंग, एंड ऑब्वियसली जनरेटर है तो आई विल बी गिविंग सम मैकेनिकल मोशन। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स विल बी गिवन एज द इनपुट, एंड दिस विल बी द आउटपुट, एंड दिस इज द आउटपुट व्हाट आई नीड टू चेक। ये दो चीजें मेरे पास अवेलेबल होंगी, इस चीज को मुझे चेक करना है, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पे जो गलती करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। सो यहाँ पे जो गलती जो करते हैं, फाइन, देखिए आप यहाँ पे ऊपर। सो कैन आई से दैट कि मेरा जो फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यस? हेलो, ये मेरे फील्ड का डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन है। Yes, sir. हेलो, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, मैं आई एम टेकिंग टाइम हियर टू एक्सप्लेन दिस पार्ट बिकॉज you people will commit a mistake, and what is that mistake you'll understand now. अभी आपको समझ में आ जाएगा। So this is the direction of field, okay, and what about the direction of motion? किस डायरेक्शन में? Is this left इस डायरेक्शन में है, या तो फिर इस डायरेक्शन में? बताइए किस डायरेक्शन में आपका? सॉरी, दिस डायरेक्शन, राइट? Yes, ये sir. इस डायरेक्शन में है। ओके फाइन, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन, आपके ये जो आपका फोर फिंगर है, आपका जो फोर फिंगर है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड आपका जो थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में। आपने बोला कि सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो थंब जो होगा, आपका जो थंब जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो जब आप अपने थंब को और फोर फिंगर को इस डायरेक्शन में रखोगे, कहाँ पे? इस पर्टिकुलर कंडक्टर के पास, एक कंडक्टर के पास, सो आपका जो मिडिल फिंगर होगा दैट विल बी इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन मींस दैट शुड बी अक्रॉस, दैट शुड बी अक्रॉस। ठीक है, सो यहाँ पे जो मिस्टेक जो है, सो यहाँ पे जो मिस्टेक जो कर रहे हो आप, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा ये। क्यों? अभी आप सोच के बताइए। जो आपने बताया ये क्रॉस एंड डॉट है, मैंने बताया कि आपने क्रॉस एंड डॉट कैसे आया है वो आंसर, वो भी मैंने बताया, और मैंने बता दिया कि ये क्रॉस एंड डॉट जो आपका आ रहा है आंसर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि दिस इज अ डॉट एंड दिस इज अ क्रॉस। सो मिस्टेक हम कहाँ पे करते हैं? वी जस्ट फोकस ऑन दिस डायरेक्शन ओवर हियर, हम इस डायरेक्शन में देख लेते हैं, अच्छा मेरा जो पोल जो है इट इज मूविंग इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, सो आपका जो थंब जो होगा इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, बट दैट इज नॉट द केस। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन किसका? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, conductor with respect to field. So this is the point you need to understand here. समझ में आ रहा है? So this is not, ये जो हम thumb लिख रहे हैं, thumb, we are not completing the statement over here. We are simply writing it as the direction of motion. किसका direction, किसका motion? It is nothing but the direction of motion of the conductor. किस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, दैट उस डायरेक्शन मुझे अपने थंब को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो है, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, दिस इज द डायरेक्शन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, बट व्हाट इज दैट आई वांट द डायरेक्शन इन विच द कंडक्टर इज रोटेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, Yes. Yes, sir. okay, so
so the answer, let me give you an example over here. Yes, sir. Okay, fine, ठीक है. For suppose this is एक vehicle है यहाँ पे and ये दूसरा vehicle है यहाँ पे. Okay. Okay. For suppose if this vehicle is moving in this particular direction, this vehicle is moving in this particular direction. Okay. Okay, one second. Let me take the other example once again. That will be clear. Okay, this is same. वो एक vehicle है और यहाँ पे एक vehicle है. तो ठीक है, ये जो vehicle है इस डायरेक्शन में रोटेट, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. दिस इज कंप्लीटली स्टेबल. मान लो कि ये जो vehicle है, दिस इज vehicle नंबर 1 और एल्स सम पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड दिस इज अ vehicle. ये जो नंबर 2 है, दिस इज नथिंग बट द vehicle. दिस vehicle इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आपका vehicle मूव कर रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका vehicle मूव कर रहा है. सो आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम ये आगे चले जाएगा एंड ये जो vehicle नंबर 1 है इसी पोजीशन में स्टेबल रहेगा. ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ this, what is the direction of this person with respect to this? Nothing but if I consider this to be stable, if I consider this vehicle to be stable with respect to this vehicle, ये person किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा बताइए एक बार. Left. So left Yes. direction. यस, बस वही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे. ओके, ये जो पर्सन है इज कंप्लीटली स्टेबल, एक पोजीशन में खड़ा हुआ है एंड दिस इज द व्हीकल व्हिच इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ये व्हीकल मूव कर रहा है. अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन, कि ये पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस व्हीकल. इस व्हीकल के रेस्पेक्ट में मुझे इस पर्सन का डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दो ही इज स्टेबल, कैन आई से दैट विथ रेस्पेक्ट टू दिस व्हीकल ही इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? क्या बोल सकते हैं ये? Yes, Hello. sir. Okay, so bas that's it. That is a simple thing that you need to apply here. Okay, so what is that you need to understand over here is, see, this is the direction in which field is moving. So if I consider my field to be stable, can I say that my conductor is moving in this particular direction with respect to this field? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो कंडक्टर है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड थंब किस डायरेक्शन में होगा, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा. जब थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा तो फोर फिंगर कहाँ पर होगा, फोर फिंगर विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. इफ दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल इट बी अ क्रॉस और अ डॉट? सो दिस शुड बी अ डॉट. Dot. If this is a dot and this should be a cross. Is this clear? समझ में आ रहा है? See, this looks very simple. This Fleming's right hand rule looks very simple. According to the Fleming's right hand rule, हमने simply बता दिया कि this is cross and this is dot. And no doubt, 95% of the students will be giving the same answer. कि यहाँ पे cross है, यहाँ पे dot. The simple logic that we miss is this is the direction of motion of conductors with respect to field. So the conductor is moving in this particular direction. So obviously, with respect to field, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, dot आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए आपका cross. क्या ये simple सी बात clear है? बता दीजिए मुझे एक बार. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है. चलो, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, वो एक क्वेश्चन था. अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फॉर सपोज, ओके ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जस्ट इमेजिन दैट रोटर इज इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर्स ए एंड ए डैश इज मैक्सिमम. ए और ए डैश में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज मैक्सिमम. Okay, that is maximum. Okay, now just tell me one thing, what about the EMF that will be induced in these two conductors B and B dash? B and B dash में जो EMF induce होगा, what about that EMF that is getting induced? Yes, बताइए. What about the EMF that is getting induced in the conductors B and B dash? Hello. What is the EMF that will be getting induced? Zero होगा या कुछ वैल्यू मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा सर. It will be a zero EMF that is getting induced in this conductors B and B dash at this particular position. जब रोटर का पोजीशन ये है, so that will be the EMF induced. Yes, बताइए EMF induced कितना होगा? बेसिक फिजिक्स है.
आप लोग को आना चाहिए आंसर ये। हेलो, कंडक्टर्स इस पोजीशन में है, नथिंग बट, या अगर दिस इज नथिंग बट अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो नथिंग बट इट इज इनटू द प्लेन। आपका जो कंडक्टर बी जो है यहाँ पे, सो दिस विल बी इनटू द प्लेन है, ठीक है। एंड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, okay. So if you look into this scenario, according to you, what about the EMF induced in the conductors B and B dash? EMF induced will be equivalent to 0. 0 क्यों है बता सकते हैं आप? सर जब रोटर का पोजीशन ये है, when this is the position of the rotor, the EMF induced in this conductors B and B dash will be 0. बस when it starts rotating, हल्का सा 90 डिग्री से जब ये थोड़ा सा भी आने लग जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे EMF बिल्ड होने लग जाएगा। एंड जब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा तो EMF induced will be maximum in this conductors B and B dash. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे A और A dash पे जो EMF होगा that will be 0. इतना पता है आप लोग को? Do you know this? Understand, sir. सॉरी, पता है या नहीं पता, बताइए एक बार। हेलो। Yes, sir. पता है, sir. Okay, fine. Okay, if you know this, very good. So ठीक है. So the answer is in this particular position, इस particular position पे A और A dash में EMF maximum होगा, okay, and B और B dash में EMF जो होगा that will be equivalent to 0. So that is what you need to know. And if I draw a graph, nothing but अगर मैं waveform draw करता हूँ तो waveform इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा आपको। If I draw the waveform, this is how the waveform will look like. So let me draw the waveform for the current flowing in the conductor A. Okay. So जब A में current maximum है, what about the EMF or the current that is equivalent to 0? So this is what it will look like. Nothing but जब यहाँ पे maximum होगा तो यहाँ पे 0 है, and when it is negative maximum it will be equivalent to 0. तो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है. This is nothing but IA and this is nothing but IB. Yes, is there any confusion? बताइए मुझे एक बार. Hello. No, sir. No, sir. See, I know आफ्टरनून का टाइम है, थोड़ा सा फोकस करें. So let me write down this once again over here. So this is A and this is A dash and this is B and this is B dash. Okay. So this is the position of the rotor. So this is the position or the location of the rotor at this particular point. Okay. This is the direction in which it is rotating. So यहाँ पे it will be a dot and this will be a cross. I hope there is no confusion why it is a dot and a cross. Okay. So if I draw the EMF waveform अगर मैं draw करता हूँ जो यहाँ पे induce होने वाला है, तो इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा. ठीक है. Exactly जब ये 90 डिग्री फ्लिप कर जाएगा, let me draw it in some other color. ठीक है. जब ये इस पोजीशन में होगा, this is north and this is south, तो उस केस में यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा B और B डैश में वो मैक्सिमम होगा और A और A डैश में it will be equivalent to 0. बस वही है. जब B और B डैश में मैक्सिमम है, so what is this here? It is A में कितना है? 0 है. जब A में मैक्सिमम है, B में कितना है? 0. बस वही वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ओके ओके ठीक है. सो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो EMF से दे आर डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय हाउ मेनी डिग्रीज? यहाँ पे जो EMF से दे आर डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय हाउ मेनी डिग्रीज? दिस इज द EMF और द करंट डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय हाउ मेनी डिग्रीज? बताइए एक बार. और सपोज इफ आई टेक दिस एज अ रेफरेंस, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, अच्छा ठीक है, A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द फेज 90 degree. It is 90 degrees. It is 90 degrees. Okay. So what is the conclusion that I can give over here? What is the conclusion that I can give? बताइए. यहाँ पे windings are displaced in space by 90 degrees. Because of this space displacement, the time displaced current that I am giving are again displaced by 90 degrees. So what is the final conclusion that I can give here? क्या हम final conclusion दे सकते हैं यहाँ पे? Hello. So let me write down this point here. If in space if we rotate the poles
One second. Space by 90 degrees. The EMF induced in A and B, nothing but in conductor A, sorry, in winding A and B are displaced by displaced by 90 degrees in time. Is this point clear? आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरा Yes, rotor sir. 90 degree space में Yes, rotate sir. कर रहा है, so nothing but EMF induced in A and B are displaced by 90 degrees. EMF induced in A and B are displaced by 90 degrees in time. Okay. So what is that we are trying to discuss over here is we are trying to discuss the working of a generator. Nothing but generally generator कैसे काम करेगा? जनरेटर मतलब क्या होता है? वी नीड टू इंड्यूस ईएमएफ, इनपुट देना पड़ता है. व्हाट इज दैट इनपुट? इनपुट इज नथिंग बट द मैकेनिकल इनपुट, जिसकी वजह से ये रोटर रोटेट कर रहा है. जब ये रोटर रोटेट करेगा, इन कंडक्टर्स को कट करेगा. जब इन कंडक्टर्स को कट करेगा, so what will happen? EMF induce होगा, EMF induce होगा, and this will be the nature of EMF that is getting induced. This is the nature of EMF that is getting induced. But basically इस तरीके का EMF हम induce नहीं करते किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में. Do we have this kind of output that we are generating? The answer is no. What is the waveform? What is the kind of EMF that we are trying to generate is three phase in nature. Three phase EMF हमें generate करना है. And what is the peculiar behavior of this three phase? Three phase में आपके जो तीन phases होते हैं are displaced in time by 120 degrees. They are displaced in time by 120 degrees. तो इस तरीके का वेवफॉर्म मुझे जनरेट करना है. इस तरीके का वेवफॉर्म मुझे जनरेट करना है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में. सो नाउ आई हैव गिवन यू एन आइडिया. दो कंडक्टर्स को, दो वाइंडिंग्स को मैंने लिया एंड आपको मैंने बताया कि जब ये रोटेट करेगा इस तरीके का आपको वेवफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू जनरेट अ थ्री फेज आउटपुट, इफ आई वांट टू जनरेट अ थ्री फेज आउटपुट which is having a 120 degree phase shift, so what are the changes that I need to do? क्या क्या चेंजेस मुझे करने होंगे? रोटर पे क्या होना चाहिए? What should be the वाइंडिंग पोजीशन? वाइंडिंग का पोजीशन कैसा होना चाहिए? क्या व्हाट इज दैट आई हैव टू फुलफिल? बताइए एक बार. अगर मैंने आपको बोला कि ऐसा थ्री फेज वेवफॉर्म जनरेट करना है तो आपको रोटर कैसे डिजाइन करो, स्टेटर कैसे डिजाइन करोगे? आप बताइए. हाउ द स्टेटर शुड बी अकॉर्डिंग टू यू? हाउ द स्टेटर शुड बी अकॉर्डिंग टू यू? कितने वाइंडिंग्स होने चाहिए स्टेटर के ऊपर? एटलीस्ट ये बता दीजिए. हाउ मेनी वाइंडिंग्स? 6 वाइंडिंग्स या 3 वाइंडिंग्स? 3 वाइंडिंग्स. यस. So, three देखिए यहाँ पे इट इज 2 वाइंडिंग्स. यहाँ पे 2 वाइंडिंग्स है, A एंड A डैश. आई टोल्ड यू राइट, अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी एक वाइंडिंग होता है तो इस तरीके का वाइंडिंग होता है, राइट. सो दिस इज वन कंडक्टर एंड दिस इज द अदर कंडक्टर. बस वही है. तो ये एक वाइंडिंग है जिसका ऊपर वाला एक कंडक्टर, नीचे कंडक्टर. तो उसी तरीके से व्हाट इज दैट आई नीड टू हैव हियर इज आई नीड टू हैव 3 वाइंडिंग्स. 3 वाइंडिंग्स होनी चाहिए. एंड आई नो वेरी वेल कि मुझे जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट शुड बी डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 degrees. So obviously these 3 windings should be displaced in space by how many degrees? So 120 degrees. 20. Yes, exactly. 120. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे these 2 MMFs are displaced in time by 90 degrees. कब? When these 2 windings are displaced in space by 90 degrees. तो बस वही लॉजिक मुझे फॉलो करना है. If I want my 3-phase EMF to be induced, so these 3 windings should be displaced in space by 120 degrees. Okay. So these are the 6 conductors but 3 windings. 3 windings हैं. A and A dash is one winding. B and B dash is the other winding. C and C dash is the other winding. So यहाँ पे आप देख सकते हैं A and B के बीच में स्पेस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 120. B और C के बीच में 120. And again between C and A it is again 120 degrees. Okay. So rotor remains the same. रोटर को मैं वैसे ही रख रहा हूँ. That it is north and south. Okay. And what is the direction of rotation? So let me keep it the same, that is in anti-clockwise direction. So what about the direction of currents in A and A dash? A और A dash में currents किस direction होने चाहिए बताइए एक बार. A और A dash में currents cross होगा या dot होगा? Will it be a cross or a dot? देखिए सबसे पहले, sorry, sorry. So A में dot.
Okay, so this will be a dot and this will be a cross. बस वही सेम अलाइनमेंट है, बस यहाँ पे एक और दो हमने एक वाइनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे. सो लेट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, थोड़ा सा फिर से फोकस करें. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, आपका जो फोर फिंगर जो होना है, आपका राइट हैंड का फोर फिंगर जो होगा, दैट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट थंब. थंब किस डायरेक्शन में होगा? थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. किसके डायरेक्शन में? द डायरेक्शन इन विच द कंडक्टर इज मूविंग. नथिंग बट ये जो कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. Right, no doubt it is completely stationary, it is stationary, but with respect to this magnetic field, ये magnetic field इस डायरेक्शन में, nothing but magnetic field इस डायरेक्शन में. तो क्या मैं बोल सकता हूँ with respect to this magnetic field this conductor is moving in this particular direction? Yes, yes. So Yes, what about this? So this should be the direction in which the thumb should point. Okay, कभी भी आप इस डायरेक्शन को नहीं लोगे, इस डायरेक्शन को लोगे तो आपका यहाँ पे क्रॉस आएगा जो गलत हो जाएगा, कन्वेंशन आपका एकदम गलत हो जाएगा. So हमेशा आप कंडक्टर के डायरेक्शन को लेंगे with respect to this magnetic field. So obviously conductor will be moving in this particular direction with respect to this magnetic field. Okay, now what about your, if this is my forefinger and this is the direction of my thumb, obviously आपका जो middle finger होगा that will be pointing outwards. आपका जो middle finger होगा that will be pointing outwards. So obviously outwards का मतलब है it is cross and this, sorry, it is dot and this is cross. यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, A dash के पास भी आप चेक कर सकते हो. This is the direction of फोर फिंगर. ठीक है, अब मुझे बताइए ये कंडक्टर ए डैश किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? ऑब्वियसली अगर आपका साउथ पोल इस डायरेक्शन में, बिकॉज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ए डैश विल बी मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब. ओके, एंड अगर आपके फोर फिंगर एंड थंब को इस डायरेक्शन रखोगे, आपका जो मिडिल फिंगर जो होगा दैट विल बी इनटू द प्लेस इनवर्ड. सो हियर इट विल बी अक्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं. सो जस्ट प्लीज अवॉइड दैट स्मॉल मिस्टेक हो गई. ओके, व्हाट अबाउट द वेवफॉर्म? कैसा आएगा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इन तीन कंडक्टर्स में, कैसा आएगा आपके हिसाब से? इट विल बी डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय हाउ मेनी डिग्रीज? I'll be having 120. Yes, the answer is clear. So it will be displaced in space by, sorry, displaced in time by 120 degrees. See, this is a terminology that you need to be clear with. थोड़ा सा time लगेगा. Displaced in time, displaced in space. These windings are displaced in space by 120 degrees, right? जिसकी वजह से जो यहाँ पे EMF induce होगा, that will be displaced in time by 120 degrees. तो this is the terminology जो आप धीरे-धीरे आप सीख लोगे. Okay, so this is let me draw this completely. Okay, so this is IA and this is current flowing in this, and this is the current flowing in this third winding. So A कहाँ से start हो रहा है? A यहाँ से start हो रहा है. A के exactly 120 degrees के बाद में B start हो रहा है, and B के exactly 120 degrees के बाद में आपका C start हो रहा है. So can I say that I have a time displacement of 120 degrees? Yes. समझ में आ गया? तो इस तरीके का कुछ आपका जनरेटर काम करता है. एंड व्हाट इज दिस, आपका रोटर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रोटर एंड ऑल, विल स्टडी लेटर. बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा रोटर में क्या होता है. नॉर्थ एंड साउथ पोल ही तो होगा, ऑब्वियसली पोल्स विल बी इंड्यूस्ड. सो इफ दिस इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, तो आपका जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इन तीनों कंडक्टर्स में, दिस इज हाउ इट विल बी. इज दिस क्लियर? हेलो. Yes. Yes, sir. So this is how the three-phase EMF is induced on the rotor side, sorry, on the stator side, whenever the rotor is rotating. Generator का मतलब क्या? रोटर रोटेट करेगा, EMF इंड्यूस होगा कहाँ पे? स्टेटर पे EMF इंड्यूस होगा, जहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं, will be feeding into our load. Okay, so this is what you should know. Okay. So यहाँ पे एक छोटा सा derivation है, we'll see that derivation later, but I need to add one more point over here. Okay. So just tell me one thing. I told you in the initial classes, if you people remember, अगर आपको initial classes मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगा, if it is a generator, generator में output क्या होता है? What is the output of a generator? You have something called as EMF induced होता है. And Yes. counter. Yes, there is also something called as the torque. ठीक है?
you have the EMF as well as the torque. You have the EMF as well as the torque. If it is a motor, मोटर है, तब भी आपके पास क्या होता है, EMF होता है and back EMF. एंड यहाँ पे भी टॉर्क होता है. ओके फाइन. सो वी हैव these two parameters, दोनों जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन, दोनों में ये दोनों चीजें अवेलेबल होती है. बट दिस आर नेमिंग, जैसे इन्होंने बोला कि दिस EMF विल बी कॉल्ड एज द बैक EMF इन केस ऑफ मोटर. यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है मोटर में उसको हम बैक EMF बोलते हैं. यहाँ पे जो टॉर्क होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर टॉर्क. इसको हम बोलते हैं काउंटर टॉर्क. द टॉर्क विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टॉर्क विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टू द टॉर्क, जिसकी वजह से ये EMF इंड्यूस हो. तो अभी हम ये जो डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था, लेट अस सी कि ये पॉइंट यहाँ पे वैलिड है कि ये नहीं, कि यहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको अपोज करेगा. ऑब्वियसली अगर मेरा रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में होगा जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ. हेलो, this is the force which I'm applying because of which it is rotating in this particular direction. So can I say that my torque and speed both are in this particular direction? So this is the torque which I'm applying. Hello. Yes, sir. Okay. So this is the torque which I'm applying because of which the rotor is rotating in this particular direction. Okay. So I need to see कि जनरेटर में तो टॉर्क हमने इनपुट दे दिया है. यहाँ पे ये जो टॉर्क जो होता है वो तो यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, दिस इज द टॉर्क and this is the direction of torque which we are applying. EMF induce हो गया, ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है. EMF is getting induced in these conductors, that is clearly evident. Hello. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes. ये जो तीन कंडक्टर्स हैं आपके तीन वाइंडिंग्स हैं, तीन वाइंडिंग्स पे आपका EMF इंड्यूस हो रहा है, वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? And these are displaced in time by 120 degrees, that is also clearly evident. Now the question is, where do you see this counter torque? आपका counter torque कहाँ देखने को मिल रहा है? That is the question. Do you find anything something called as the counter torque? क्या आपको कहीं पर भी काउंटर टॉर्क देखने को मिल रहा है जो इस टॉर्क को अपोज कर रहा है? नथिंग बट इस टॉर्क को अपोज कर रहा है. कहीं पर भी आपको काउंटर टॉर्क देखने को मिल रहा है? बताइए एक बार. Do you have anything called as the counter torque? See, this is an important point you need to understand. थोड़ा सा फोकस करिए यहाँ पे. After these 2 points, I will stop this class, and after next class हम देखेंगे छोटा सा एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. We'll see that in the next class. सर इनपुट टॉर्क के रिवर्स में Input torque. So this is the torque which we are applying. So obviously counter torque मतलब opposite direction. लेकिन यहाँ पे कहाँ विजुलाइज कैसे करोगे आप उस टॉर्क को? सिंपली ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे अच्छा सर यहाँ पे काउंटर टॉर्क होना चाहिए तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है. तो व्हाट इज दैट काउंटर टॉर्क आ किसकी वजह से रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट काउंटर टॉर्क? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट काउंटर टॉर्क? ओके चलो, सो यू विल गिव द आंसर. आप खुद ही आंसर दोगे एंड आंसर. दिस इज अ टू पोल स्ट्रक्चर, राइट? ये टू पोल स्ट्रक्चर है. हेलो, प्लीज थोड़ा सा फोकस करें. हेलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is a two-pole structure, and this is the current flowing in this conductor A and A dash. A और A dash में इतना current flow कर रहा है. इस current की वजह से MMF induce हो रहा है. अगर आपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, राइट हैंड फिंगर्स को क्रॉस एंड डॉट, तो MMF का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में MMF होगा बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दीज कंडक्टर्स. हेलो. Yes, sir. ओके, इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में होगा आपका MMF because of the current flowing in these conductors A and A dash. If this is MMF direction, can I say that एक यहाँ पे north and south pole develop हुआ है? Hello, क्या मैं बोल Yes, सकता हूँ? Yes, because of the current flowing in the conductors A and A dash. A और A dash में जब current flow करेगा, so I will be having the MMF because of this currents in this particular direction. अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है? यस. तो ये फिनोमिना आपको पता है, बस वी विल सी कि ये फिनोमिना वहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या. द आंसर इज यस. यही फिनोमिना है जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे काउंटर टॉर्क मिलेगा आपको. कैसे? यहाँ पे देखिए, दिस इज डॉट एंड दिस इज क्रॉस. सो कर्ल योर फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स को अगर आपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका फोर्स क्या, मैग्नेटिक MMF किस डायरेक्शन में होगा? MMF आपका इस डायरेक्शन में होगा. हेलो. Yes, sir. यस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. MMF because of the current flowing in the conductors A and A dash इस डायरेक्शन में होगा. चलो ठीक है, अगर MMF इस डायरेक्शन में है तो कैन आई से दैट
I have a north pole over here and I have a south pole over here. Can I say this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. MMF इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे एक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है. अभी नाउ यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. The answer is yes. You can see यहाँ पे clearly दिख रहा है आपको कि this is a north pole. यहाँ पे एक नॉर्थ पोल आ रहा है और ये नॉर्थ पोल किसकी वजह से? मैं करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर्स A and A डैश, एंड दिस इज ऑलरेडी एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अंदर एक रोटेट कर रहा है रोटर आपका, जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल इंड्यूस्ड है, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल करेंगे. Yes, sir. हेलो, और एल्स आई वुड से दैट नॉर्थ एंड साउथ विल अट्रैक्ट. ये जो नॉर्थ एंड साउथ है ये अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. यस, जिसकी वजह से टॉर्क Yes. प्रोड्यूस होगा. Can I say that this kind of torque is called as an electromagnetic torque? Can I call this torque as an electromagnetic torque? Yes. Okay, I can call this torque as an electromagnetic torque, because what is an electromagnetic torque? If you remember the very first class we were discussing about this rotating machine, I told you that दो तरीके के torque exist करते हैं. एक होता है हमारे पास reluctance torque and दूसरा कौन सा होता है? And दूसरा होता है हमारे पास electromagnetic torque. ठीक है, reluctance torque is different. What is this electromagnetic torque? I gave you a definition. Whenever two magnetic fields interact, a torque will be produced, and that kind of torque is called as the electromagnetic torque. You can see over here two magnetic fields are interacting. कौन सा magnetic field? Rotor का north and south pole and MMF का north and south pole. When these two magnetic fields interact, a torque is produced, and that torque is called as your electromagnetic torque, which is exactly in the opposite direction to that of your input torque. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is what that counter torque is. I hope अभी आप लोग को ये पॉइंट थोड़ा जस्टिफाइड लग रहा होगा कि जनरेटर में EMF भी इंड्यूस होता है और एक टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है, एंड ये जो टॉर्क होता है एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड दैट इज द रीजन दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज द काउंटर टॉर्क. ओके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस काउंटर टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है A और A डैश में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज हमको पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज फ्लोइंग. जितना ज्यादा लोड होगा, जितना ज्यादा लोड बढ़ रहा है मतलब व्हेनेवर आई से दैट लोड इज इंक्रीजिंग, दैट मींस करंट इज इंक्रीजिंग. करंट इंक्रीज होगा तो व्हाट हैपेंस? द फ्लक्स विल इंक्रीज. फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो स्ट्रेंथ है ये भी बढ़ेगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बिकॉज जब मैं बोलता हूँ कि लोड इंक्रीज हो रहा है, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने कोई लोड कनेक्ट कर दिया A और B C के बीच में एक लोड कनेक्ट कर दिया. सो वन सेकेंड, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय लोड. ठीक है, C की वजह से यहाँ पे एक स्टार कनेक्टेड लोड है. ठीक है, लोड कनेक्ट कर दिया मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा. When the load is increasing, obviously करंट इंक्रीज होगा. जब करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. जब फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इंक्रीज होगा. ठीक है, सो ज्यादा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे इस मैकेनिकल टॉर्क को और बढ़ाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, so this is that simple thing that you need to understand. बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हमने डिस्कस कर ली है मोस्टली. I hope this is clear now. Okay, so whenever you have a generator, you have something called as the induced EMF as well as the counter torque, and you can see that this counter torque is exactly in the opposite to that of your input torque. Okay, that is nothing but a generation action. सर काउंटर टॉर्क तो सर कम से कम होना चाहिए ना? Sorry? सर Counter- काउंटर टॉर्क कम से हाँ. कम होना चाहिए. कम से कम होना चाहिए. हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता. ये कंप्लीटली आपके लोड पे डिपेंड करेगा. ये कंप्लीटली आपके लोड पे, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आपको इनपुट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? जैसे आपको मैंने बताया था, आई गेव यू एन एग्जाम्पल. एक बेसिक से एग्जाम्पल दिया था. फॉर सपोज देयर इज अ बकेट, एम्प्टी बकेट. अगर एम्प्टी बकेट है, अगर इस एम्प्टी बकेट को आपको लिफ्ट करना है, what is the amount of force that you will be applying? The amount of force that you will be applying is almost equivalent to zero. So in this case, the work done will be almost equivalent to zero. But suppose if this bucket is full, bucket एकदम full है, so एक opposite direction में force लगेगा because of this gravitational force लगेगा because of this weight. So obviously आपको उतना force आपको opposite direction में लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए. समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा वाटर बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फोर्स बढ़ते जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
जितना ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ती जाएगा, जितना ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ते जाएगा उतना आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो एज टू लिफ्ट दिस बकेट। सेम वही लॉजिक है यहाँ पे, समझ में आ रहा? सेम वही लॉजिक है। जितना ज्यादा लोड बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा लोड बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल इंक्रीज, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो इस रोटर को घुमाने के लिए आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा उस रोटर को रोटेट करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो सर इसका Yes, मतलब sir. सर काउंटर टॉर्क कभी भी इनपुट टॉर्क से ज्यादा नहीं हो सकता, काउंटर टॉर्क कभी इनपुट Counter टॉर्क torque? से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा होगा तो काम कर ही नहीं पाएगा। देखो आप यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि मान लो कि एक छोटा सा बकेट है यहाँ पे, ठीक है? अगर इसका वेट बहुत ज्यादा है जो आपके बियॉन्ड कैपेसिटी, जिसको आप उठा नहीं सकते हो, मान लो कि वेट, मान लो आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 kgs उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, एंड फॉर सपोज इसका वेट मान लो कि 10 kgs है, क्या इसको आप लिफ्ट कर पाओगे? विल यू बी एबल टू लिफ्ट दिस बकेट? द आंसर इज नो, वी वोंट बी एबल टू, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी। ओके सर। यस, सो ऑब्वियसली आपका जो मोटर जो डिजाइन होता है अकॉर्डिंगली डिजाइन होता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए, कितना करंट फ्लो करना चाहिए। रेटिंग्स, हर एक मोटर का एक रेटिंग होता है, राइट? एवरीथिंग हैज इट्स प्री डिफाइंड रेटिंग्स, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच दिस रोटर, वो डिस्कस करेंगे जब हम इंडक्शन और सिंक्रोनस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द बेसिक्स। ओके फाइन, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन है, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स, जैसे लास्ट टाइम मैंने दे दिया था आपको, इस बार भी मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट क्लास? एक एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन? याद है आप लोग को? आई टोल्ड यू दैट दैट इज अ पॉपुलर एक्सप्रेशन जो हम यूज करते रहेंगे हर बार। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? synchronous speed. यस, सिंक्रोनस स्पीड का था। सो दैट इज नथिंग बट ns इज इक्वल टू 120 f by p. So what is the synchronous speed? This is nothing but the speed at which the rotating magnetic field will be rotating. So that is nothing but the synchronous speed. तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा, this EMF will be having some amount of frequency. ये जो EMF यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे हम जो फ्रीक्वेंसी जो हम जनरेट करते हैं that is 50 Hz. Yes, 50 Hz is the frequency of the EMF what we are generating. तो उसी तरीके से यहाँ पर आप जो EMF इंड्यूस कर रहा है this will be having some frequency, and what is that frequency? The expression of that frequency is f is equal to Pn by 120. So इस एक्सप्रेशन को आपको, इट इज नॉट काइंड ऑफ अ डेरिवेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था 2-3 स्टेप्स लिखे थे, उसके बाद हमने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखा था, उस तरीके से वी विल बी सीइंग दिस एक्सप्रेशन कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे। सो व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? दिस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. सो ये एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करने वाले हैं। क्लियर? सो व्हाट इज दिस Yes. f? What is this f? F is nothing but the frequency of the induced EMF. एक चीज बताइए, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में? Do you find any difference? Do you find any difference? Do you find any difference? Okay, fine. So it is also ns, synchronous speed मान लीजिए इसको आप, ठीक है? So do you find any difference? The answer is no. We don't find any difference. No, F is equal to Pn by 120. ठीक है? But इसका जो हम किस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन निकालते हैं, we'll see in the next class. ठीक है? अगर आपको एक एक्सप्रेशन याद है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। So what is this? This is nothing but the frequency of the induced EMF. कि किस frequency पे हमको EMF induce हो रहा है, and this was the speed at which my rotating magnetic field was rotating. So that's it for today. So we are left with a small derivation part and all. And we'll be done with the basics, and after that we'll be starting any one of the machines. पहले वाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग्स है, व्हाट इज द वाइंडिंग अलाइनमेंट, क्यों ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड एंड ऑल, विल सी।